Do your homework properly, so be careful. Now बेटा जो लास्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू सपोज 0 to pi by 2 just let me explain this question, then I will start today some extras, then we will complete miscellaneous beta. This question when I told you can apply in numerator. Suppose if you have any problem, you can, this is equation number 1, then log this is pi by 2, you can write 4 plus. If you are substituting here property, if you are applying property sin 90 minus theta becomes cos x हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 4 plus 3 क्या हो जाएगा. In case if you want apply both numerator and denominator property, then you can write like this. Then you have to do one thing, 1 plus 2. This is also I, this is also I. So 2i equal to then 0 to pi by 2. ये हो जाएगा बेटा log m into n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m plus log n. So ये हो जाएगा 4 plus 3 sin x the whole upon 4 plus 3 cos x. So जब 4 plus 3 cos x and then into ये हो जाएगा आपका 4 plus 3 cos x the whole upon 4 plus 3 sin x हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इट विल बी कैंसिल हो जाएगा बेटा, log 1 आ जाएगा 0. सो आपका चॉइस है, खाली न्यूमरेटर में अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो टोटली अप्लाई करके 1 and 2 को ऐड करके कर सकते हैं. सो दैट इज अप टू योर चॉइस. ओके फाइन. नाउ बेटा लेट मी डू सम एक्स्ट्रास टुडे. ओके सो ऑल टाइप्स में इंट्रोड्यूस करूंगी तभी हम मिसलेनियस कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. आपको एक्स्ट्रास पता होना जरूरी है, मतलब कुछ फॉर्मेट्स एनसीईआरटी में नहीं है. Now see, now to integrate, हर फॉर्मेट में 2-2 क्वेश्चन मैं करूँगी बेटा, आपको 2-2 क्वेश्चन दूंगी. दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट इफ यू नो ऑल दीज टाइप्स देन ओनली वी कैन कंप्लीट मिसलेनियस. टू इंटीग्रेट इंटीग्रल dx अपॉन a plus or minus b sin x or otherwise integral dx upon a plus or minus b cos x, a plus or minus b cos x. आपको एक रिमार्क दिया था बेटा, इफ द डिनोमिनेटर इज 1 प्लस आर माइनस साइन एक्स, 1 प्लस आर माइनस कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस आर माइनस टैन एक्स, देन डू रेशनलाइज सो दैट यू गेट आइडेंटिटी इन डिनोमिनेटर. सो ये 1 प्लस आर माइनस होगा पर्टिकुलरली तभी तो कर सकते हो. इन केस मान लो डिनोमिनेटर में 2 प्लस साइन एक्स आ गया, सो रेशनलाइज करोगे कोई आइडेंटिटी तो नहीं आ सकता है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. So be alert. So what I am saying here, to integrate integral a dx upon a plus or minus b sin x and integral dx upon a plus or minus b cos x आ गया. So to integrate this one, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, रिप्लेस जो sin x cos x है ना, रिप्लेस sin x in terms of tan, that is 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, and then cos x can be written as in terms of tan, that is 1 minus tan square x by 2 the whole upon 1 plus tan square x by 2. even tan भी आता है तभी भी कर सकते हैं, that's we will see later on. Now and then step number 2 में क्या करोगे, take this denominator 1 plus tan square का 1 plus tan square x by 2, this goes to automatically numerator, that can be written as sec square x by 2, 1 plus tan square x by 2. So now step then क्या करोगे, tan x by 2 equal to t substitution दोगे, then proceed. I told you better two question I will do it. Now example I am taking, suppose integral dx upon 2 minus 3 sin x, ये आ गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल बेटा, और कोई मेथड आपके पास आ जाए रेशनलाइज करें, वी डोंट हैव एनी अदर मेथड except this one. Okay, so what I told you, you have to replace in terms of sin, even in integral dx upon a sin x plus or minus b cos x, ये भी आ गया, तब भी ये भी करना है. सो मैंने बोला आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेती हूँ, dx upon 2 minus 3 sin x. अब what I told you in terms of tan में रिप्लेस करना है, इंटीग्रल dx upon what we have to do, 3 into 2 tan x by 2 the whole upon 1 plus tan square x by 2. अब ये 1 plus tan square x by 2 को एलसीएम निकालो, इंटीग्रल dx upon इसको एलसीएम निकालो बेटा, 1 plus tan square ऑटोमेटिकली ये 1 plus tan square न्यूमरेटर में जाएगा, 1 plus tan square x by 2 the whole upon इसको यहाँ एलसीएम निकालो, 2 plus 2 tan square x by 2 and then ये ओपन करूँगी minus 6 tan x by 2 into क्या हो जाएगा dx. अब ये 1 plus tan square को क्या लिखोगे, 1 plus tan square can be written as sec square, so that is I equal to integral
sec square x by 2 into dx the whole upon, we are getting 2 tan square x by 2 minus 6 tan x by 2 and then plus 2. ये 2 को बाहर लेना है, ले लो बेशक, that is up to your choice. Then I told you, so you have to substitute tan x by 2 equal to t. अब डिफरेंशिएट करोगे बच्चे sec square x by 2 into differentiation of x by 2 1 by 2 into dx equal to dt. Now I equal to this 2 goes to that side, so numerator 2 dt the whole upon, ये हो जाएगा बेटा 2t square minus 3t and then plus 2 6t and then plus 2. 2 भी ऊपर नीचे कैंसिल करना है, दैट इज अप टू योर चॉइस. सो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 प्लस 1. सो अब इसको क्या करोगे, दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक में जाओगे. यू नो हाउ टू इवैल्यूएट dt अपॉन, क्या करोगे, इसका हाफ ऑफ कोएफिशिएंट लोगे माइनस 3t प्लस 1 माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. यूजुअल मेथड व्हाट विल वी हैव डन अर्लियर. Now I equal to, we can write integral dt upon, this can be written as t minus 3/2 का whole square and then plus 1 minus 9 by 4. So LCM निकालो 4, so minus root 5 by 2 का 5 बाकी था बेटा, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए इसको root 5 कर दिया. Now the formula is x square minus a square. बेटा anybody can say the formula, integral dx upon x square minus a square. बच्चे प्लीज. Yes beta, anybody can remember formula, integral dx upon x square minus a square. Yes बच्चे, yes beta, log mod x plus a upon x minus a. नहीं बेटा नहीं, फॉर्मूला रिवीजन करो बच्चे, फॉर्मूला रिवीजन करो. टॉपिक आई एम गोइंग टू कंप्लीट 1 by 2a log x minus a अपॉन x plus a. बच्चे प्लीज फॉर्मूला रिवीजन करो, फॉर्मूला नहीं आता वो कर ही नहीं पाओगे. नाउ 2 कैंसल, I इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 tan log. सो ये हो जाएगा बेटा, एलसीएम निकालोगे 2t माइनस 3 माइनस रूट 5 द होल अपॉन 2t माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस. इट इज सो सिंपल, बस आपको मेथड याद होना चाहिए और कुछ नहीं, कैसे रिप्लेस करना है. सो इंस्टेड ऑफ tan वी कैन राइट tan x by t tan x by 2. सो समझ आए बच्चे, ये मेथड समझ आए बेटा. से यस नो बेटा, एक और क्वेश्चन करूंगी बच्चे, से यस नो प्लीज. समझ आए बेटा ये? Yes ma'am. Yes बेटा, what I told you, if the denominator 1 plus or minus आता है तब रेशनलाइज करो, आइडेंटिटी आ जाएगा. सपोज इफ द टर्म लाइक दिस कांस्टेंट चेंज हो गया, देन इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट एट ऑल. बच्चे थोड़ा फास्ट लिखोगे. एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करूंगी क्योंकि वी हैव डिफरेंट टाइप्स. आज एटलीस्ट स्पेशल फॉर्मेट को खत्म करते हैं. Better write fast, and I am giving time, I am giving enough time to note down each and everything. So those who are not writing, so what you are doing between, but it is not so easy, and I am not leaving any part, anything. I know how can you score become 100 marks. That's I can give you. The same class, why you are taking tuition in the evening time, online class, what is the purpose? What is the use of taking this class? Beta, have you written? No ma'am. Right. Yes ma'am. Yes, you write right.
बच्चे थोड़ा फास्ट लिखो बेटा। यस बच्चे, बेटा थोड़ा फास्ट लिखो बेटा। डन मैम। हाँ, अब देखो बेटा, सपोज यहाँ पे 2 ना होगा, देन √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपको क्या है प्रॉब्लम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना पता होना चाहिए। बट आपको तो जनरल मैं जो बोल रही हूँ, सपोज यहाँ पे 2 नहीं है, आप 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, sin a + b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। सो आपको अल्टरनेट मेथड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने ये एक जनरल प्रोसीजर बताया, कहीं पे भी इंटीग्रेशन आ गया ये क्वेश्चन आपका अप्लीकेबल होगा। सो आप आंख बंद करके tan में रिप्लेस करो, क्यों, जब यहाँ पे 2 ना होता तभी भी tan में रिप्लेस करो, इजीली यू विल गेट रिजल्ट। अब देखो tan में रिप्लेस करूंगी dx अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 tan x/2 द होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 एंड देन प्लस ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x/2 द होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ओके, टेक द LCM नाउ, दैट इज 1/2 इंटीग्रल। सो इफ आई टेक LCM, तो LCM ऑटोमेटिकली 1 + tan स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा बेटा, मैं सीधे लिख रही हूँ, दैट बिकम्स tan स्क्वायर x/2 into dx the whole upon denominator, ये 4 है, tan x/2 that is minus tan square x/2 and then plus 4 tan x/2 and then here क्या आ जाएगा +1, there is no under root। so अब आप सब्सटीट्यूशन दे दो, tan x/2 equal to t, this implies क्या आ जाएगा sec square x/2 into dx is equal to 2t into dt आ जाएगा, 2 dt, यहाँ पे 1/2 आएगा, वो 2 वहाँ ले लिया मैंने। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रल 2 dt द होल अपॉन, ये हो जाएगा -t² + 4t एंड देन +1। कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1 परफेक्ट स्क्वायर के लिए माइनस का बाहर लेना है, बेशक ले लो बेटा, वो आपका चॉइस, dt अपॉन t² - 4t एंड देन +1 इज द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट टू 2, उसका स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ दैट इज इक्वल टू -2 इंटू that is equal to -2 into integral dt upon, so क्या हो जाएगा यहाँ पे, so that is t - 2 का होल स्क्वायर एंड देन आ जाएगा 1 - 4, so -√3 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला x² - a², राइट नाउ वी हैव सीन 1/2a log x - a t - 2 -√3 द होल अपॉन t - 2 प्लस √3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा प्लस c, और अदरवाइज द फाइनल आंसर I equal to 2 cancel, so -1 upon √3 into log instead of t tan x/2 and then -2 -√3 the whole upon tan x/2 -2 and then plus √3 plus c। आर यू क्लियर? सो इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ, 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, बच्चे प्लीज होमवर्क कर लेना। इंटीग्रल dx अपॉन 3 - cos 6, इंटीग्रल dx अपॉन 2 + 3 sin x and then integral dx upon 2 sin x and then +4 और 5 cos 6, ये आप होमवर्क में कर लेना बेटा। अब अनदर फॉर्मेट में आती हूँ, सो ये एक डिनोमिनेटर में साइन कास आ जाता है, तब आपको ये फॉर्मेट दिया। नेक्स्ट टू इंटीग्रेट इन केस यही सेम इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस आर माइनस वॉट एवर, ये प्लस आर माइनस b साइन स्क्वायर x और अदरवाइज इंटीग्रल, अब स्क्वायर आ गया, यू कैन नॉट रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ tan बच्चे, सो ये प्लस आर माइनस b cos स्क्वायर आ गया और देन इंटीग्रल dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस आर माइनस b cos स्क्वायर x आ गया। देन व्हाट वी हैव टू डू, हाउ टू इंटीग्रेट। नाउ लिसन बेटा, जब डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर, जो cos sin स्क्वायर हो cos स्क्वायर हो वो इवन डिग्री, सिर्फ इवन डिग्री होना चाहिए, ऑड डिग्री होगा दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसकी करस्पॉन्डिंग sec से, यहाँ sin पावर 4 और sec पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, यहाँ पे sin स्क्वायर और sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, cos पावर 4 आ गया, sec पावर 4 से मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग sec से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या बताया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec स्क्वायर x।
ठीक है, sec square x। देन क्या करोगे, देन सब्स्टिट्यूट, देन tan x is equal to t, then proceed। So tan x is equal to, let tan x equal to t, then proceed। So ये क्वेश्चन कैसे करना है अभी देखेंगे। लिखो बेटा फास्ट, राइट डाउन फास्ट। राइट फास्ट बच्चे। डन मैम। यस बेटा। नाउ अब इसी टाइप का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नाउ लिसन, सपोज इफ द क्वेश्चन कम्स इंटीग्रल dx अपॉन 2 + 3 cos square x, ये आ गया, ठीक है ना। सो व्हाट आई टोल्ड यू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec square। सो इमीडिएटली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec square x into dx द होल अपॉन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं बेटा माइंडेड। सो 2 + 3 cos square x, ओके फाइन। नाउ इसको ओपन करो। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रल sec square x into dx द होल अपॉन, ये हो जाएगा 2 into sec square है ना बेटा, न्यूमरेटर में tan, हमने बोला सब्स्टिट्यूशन tan का देना है, इसी 2 sec square को 1 + tan square कर रही हूँ बेटा, सो दैट आई कैन डू सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो फाइनल न्यूमरेटर में sec square x है into dx द होल अपॉन, डिनोमिनेटर में 2 tan square x प्लस क्या आ रहा है आपके पास 5। अब सब्स्टिट्यूशन दो, tan x is equal to t, दिस implies sec square x into dx is equal to क्या हो जाएगा dt। now I equal to, in case लिमिट गिवन हो, लिमिट को चेंज करके आगे प्रोसीड करो। सो इंटीग्रल dt अपॉन, ये हो जाएगा 2t² + 5। 2 को बाहर लेना है तो बेशक बाहर लो फॉर्मूला के लिए, वो आपका चॉइस बेटा, अपॉन t प्लस ये हो जाएगा √5/√2 का होल स्क्वायर। बच्चे व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज x² + a² का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज dx अपॉन x² + a² इंटीग्रल। बच्चे प्लीज फास्ट, कैन यू रिमेंबर बेटा, dx अपॉन x² + a²। हाँ बच्चे फॉर्मूला, यस बेटा, tan inverse x by एग्जैक्टली बेटा, 1/a tan inverse x by a। वेल डन बच्चे। 1 अपॉन √5/√2 tan inverse x by a, d अपॉन √5/√2 + c। नाउ I इक्वल टू द फाइनल आंसर, इसको √2 लिखना है, √2 लिखो, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा √10 tan inverse t की जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन था tan x द होल अपॉन, सो √2 भी ऊपर जाएगा, सो √2 tan x अपॉन क्या हो जाएगा √5 + c। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। आर यू क्लियर? इट इज सो सिंपल मेथड। In case if the question comes integral dx upon 2 sin square x plus 3 cos square x आ गया, 3 cos square x आ गया। सो अब इसमें कैसे करना है बेटा, डिनोमिनेटर में इवन डिग्री आता है ना, मैंने बोला उसकी करस्पॉन्डिंग सेक से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, सीधी सी बात। अब इसको मल्टीप्लाई, आपको तो पैटर्न याद रखना है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, ये हो जाएगा बच्चे sec square x into dx द होल अपॉन, डिनोमिनेटर में समझा रही हूँ। जब sec square के करूंगी, sin square sec square डिनोमिनेटर में आ जाएगा, cos square बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan square हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, +3 आ जाएगा। बात समझ में आया? सीधे क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन दो, tan x is equal to t, दिस implies sec square x
into ds is equal to क्या हो जाएगा dt. now I equal to integral dt upon क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3. अगेन वही सेम पैटर्न आ गया आपके पास. 1/2 को बाहर लेना है, बाहर लो. सो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. अगेन सेम फॉर्मूला. सो I equal to the final answer. It is so simple beta. So final answer is 1/a. So this is √3/2 कर देना. √3/2 tan inverse x by a t by √3/√2 plus c. So now that is I equal to 1/√6 tan inverse √2 tan x the whole upon क्या आ जाएगा √3 plus c. This is वो final answer. अब इसी बेसिस पे क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ. बेटा स्टार्ट नो डाउन प्लीज. बस ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क बेटा. प्लीज नोट डाउन फास्ट. अनदर टाइप थोड़ा लेंथीएस्ट वन है, थोड़ा जल्दी नोट डाउन करोगे तभी जा पाएंगे. अनदर टाइप थोड़ा लेंथीएस्ट वन है बेटा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट नोट डाउन करना. डन बेटा. यस बेटा. यस बच्चे, इसको पहले मैं ब्रीफ कर रही हूँ, नोट डाउन करके फिर एग्जाम्पल लूँगी. दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड 6 मार्क क्वेश्चन बच्चे. सो पहले यही सेम क्वेश्चन कैन यू रिमेंबर हमने पार्शियल में देखा था 1 - x पावर 4. इस ये विच कैन बी फैक्टराइज्ड, इसलिए 1 - x स्क्वायर इंटू 1 + x स्क्वायर करके देन x स्क्वायर के जहाँ से t असम्पशन लेके पार्शियल करके उसके बाद इंटीग्रेट किया. कैन यू रिमेंबर? कैन यू रिमेंबर? हाँ ना बोलो बेटा. पार्शियल में ये क्वेश्चन देखा था, बोलो. यस मैम. यस देखा था, लेकिन वहाँ पे ये फैक्टराइज कर पाते थे इसलिए हमने ऐसे कर लिया. नाउ देखो आपका क्या आ गया, प्लस आ गया बेटा. ओनली इवन डिग्री होना चाहिए. x पावर 4 x स्क्वायर कांस्टेंट, इसके अलावा x टर्म आएगा, मेथड इज नॉट, वो तो पार्शियल में ही जाएगा फैक्टराइज करके. इन केस आपका इवन डिग्री आ गया विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बेटा. इसको ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है. सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर 1 स्टेप बाई स्टेप में दे रही है बेटा आप लोगों का. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई. स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई. फर्स्ट क्या करोगे 2. क्यों ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैं ये सीधे आपका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में समटाइम्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, द न्यूमरेटर शुड बी, ये टर्म आना जरूरी है, वो आपको लेकर आने पड़ेगा. द न्यूमरेटर शुड बी 1 ± x स्क्वायर, ये टर्म आना जरूरी है बेटा. देन स्टेप नंबर 2 में जब डिनोमिनेटर में x पावर 4 x स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, न्यूमरेटर में किसी हालत में भी आपको 1 ± x स्क्वायर लेकर आना है. फिर स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, ये कैसे लेकर आती हूँ वो मैं आपको बता दूंगी. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, टेक आउट
x square from numerator and denominator, so that we get 1 plus or minus 1 by x square ये न्यूमरेटर में आएगा बेटा, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या टर्म आना चाहिए आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस सम कांस्टेंट होगा बेटा, यहाँ पे ये कांस्टेंट लिख लेती हूँ. सो ये भी प्लस आर माइनस हो सकता, ये प्लस ही होगा, माइनस हो ही नहीं सकता. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस आर माइनस क्या होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है ये स्टेप. एंड देन स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट x, सपोज मान लो यहाँ पे प्लस हो, माइनस 1 बाई एक्स, यहाँ पे माइनस आ गया, देन प्लस सब्स्टिट्यूशन देने पड़ेगा. साइन को मैं चेंज करी, इनकेस न्यूमरेटर में प्लस हो देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी. इनकेस माइनस आ गया न्यूमरेटर में देन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी. देन प्रोसीड. बेटा अब ये आपका प्रोसीजर मैं अपनी तरफ से लिखवा रखी हूँ, अभी इसका क्वेश्चंस में कराऊंगी तभी आपको समझ आएगा. आप पहले ये प्रोसीजर नोट डाउन करो, देन मैं जो आपका टू इंटीग्रेट दे रखी हूँ उसी में से ही क्वेश्चन लेकर मैं करा देती हूँ, ठीक है ना. नाउ बेटा करो, प्लीज नोट डाउन करो. मैं आई विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे. बेटा नोट डाउन कर लिया. यस मैम. यस बेटा नाउ लिसन, मैं यही क्वेश्चन लेकर करती हूँ, आपका क्वेश्चन जो लिखी हुई है वही क्वेश्चन लेकर करती हूँ. नाउ लिसन, अब आई एम टेकिंग दिस वन. ओके, सो सबसे पहला स्टेप आपको बताया न्यूमरेटर में आती एनी कास्ट यू शुड ब्रिंग 1 प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर. सो उसके लिए क्या कर रही हूँ बेटा, नाउ आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू और दिस वन दैट्स अप टू योर चॉइस. नाउ आई इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ न्यूमरेटर में टर्म लेकर आने के लिए. सो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब मुझे न्यूमरेटर में 1 प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या कर रही हूँ बेटा 1/2 इंटू इंटीग्रल इसी 2 को 1 प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर को ऐड इन सब. ये नहीं हाउ आई शुड ब्रिंग न्यूमरेटर वट एवर आई टोल्ड टू दी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आने पड़ेगा. नाउ इसको i इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेती हूँ. 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एक पार्ट, एंड देन प्लस इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. ओके, नाउ अनदर स्टेप में क्या बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. सो i1 i2 लेके अलग अलग कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग दिस इज i1 एंड प्लस i2. ओके बेटा लेंथीएस्ट वन, बहुत पेशेंस रख के सुन लेना. नाउ फर्स्ट आई एम टेकिंग i1 1/2 इंटू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. आई टोल्ड यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना. करूँगी बेटा, इसको डिवाइड करूँगी, मतलब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं है, डिवाइड ही कर रही हूँ. इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करूँगी, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 द होल अपॉन, ये हो जाएगा बेटा डिवाइड करूँगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर. मतलब एक्स स्क्वायर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाहर निकाल दिया, सीधी सी बात. अब आपके पास आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. एक्चुअली क्या होता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में दिया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, यू हैव टू गिव सब्स्टिट्यूशन x माइनस 1 बाई एक्स. एक्चुअली क्या देख के सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है वो देखते हैं बेटा. अब मैं सब्स्टिट्यूशन दे रही हूँ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी. इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगी, क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. मतलब मेरा पर्पस था न्यूमरेटर का लेकर आना इक्वल टू डी टी. अब देखना, जब न्यूमरेटर को dt में चेंज कर दिया, इसका भी तो चेंज करने पड़ेगा. जो सब्स्टिट्यूशन दिया ना उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. बेटा दिस इज अ कॉमन प्रोसीजर. जो सब्स्टिट्यूशन दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज, इसको ओपन करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर. हमें न्यूमरेटर में मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है. सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2. अब i1 पे आती हूँ.
Now I1 equal to, so that is we will get 1/2 into इंटीग्रल, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जहाँ से आई कैन राइट t स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 2 and then plus 1, so that is equal to 1/2 integral dt upon t square plus e square. You can write root 3 का whole square, again x square plus a square, so 1/a into tan inverse x by a, t by root 3. So I1 का फाइनल रिजल्ट आ रहा है बच्चे आपके पास 1/2 root 3 tan inverse, इंस्टेड ऑफ t हमने सब्स्टिट्यूशन दिया x minus 1/x होल अपॉन रूट 3 और अदरवाइज प्लस c करना जरूरी है. सो 1/2 रूट 3 tan इनवर्स, इसको एलसीएम निकालो x स्क्वायर माइनस 1 का होल अपॉन रूट 3x. बेटा ये I1 सॉल्व हो गया. सिमिलरली समझ आ रहा होगा बेटा मैं कैसे कर रही हूँ. नाउ आई एम टेकिंग I2 बच्चे. I2 में क्या दे रखा है बेटा 1/2, अगेन 1/2 इज कॉमन फॉर बोथ, सो 1/2 इंटू इंटीग्रल 1 minus x square the whole upon x power 4 plus x square plus 1 into dx. अगेन वही डिवाइड करना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कॉमन लेना है, नहीं है तो डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. सो 1/2 इंटू डिवाइड करूँगी ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 द होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx. बेटा आपको बताया न्यूमरेटर शुड बी 1 प्लस आर माइनस 1/x स्क्वायर. यहाँ पे एक उल्टा नेगेटिव साइन बाहर निकालना पड़ेगा तभी फॉर्मेट में आएगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगा बेटा. माइनस बाहर निकाल रही है यहाँ से द होल अपॉन x पावर 4 सॉरी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड देन प्लस 1 इंटू dx. नाउ बोलो ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्या सब्स्टिट्यूशन दोगे बेटा, क्या सब्स्टिट्यूशन दोगे, x प्लस 1/x is equal to x plus 1/x. yes beta, this implies 1 minus 1/x square into dx is equal to क्या हो जाएगा dt. now सब कुछ यहाँ पे सब स्क्वायरिंग एंड जो भी सब्स्टिट्यूशन दोगे उसका स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करो. सो करोगे x plus 1/x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर. दिस implies x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा, उधर साइड जाएगा t स्क्वायर माइनस 2. नाउ I2 इक्वल टू बेटा रिपीटेड 6 मार्क क्वेश्चन बच्चे 1/2 इंटू इंटीग्रल न्यूमरेटर हो जाएगा dt एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ऑलरेडी एक प्लस 1 भी है. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देना. नाउ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो फॉर्मूला ऑलरेडी टोल्ड यू 1/2a, फॉर्मूला 1/2a वो 2a लिख रही हो. log x minus a अपॉन x plus a plus c 2 कर दूंगी. नाउ therefore I2 इक्वल टू क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा 1/4 इंटू लॉग t की जहाँ पे क्या रिजल्ट था वो वैल्यू रिप्लेस करूंगी x प्लस 1/x माइनस 1 द होल अपॉन x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c2 जरूर कर देना. ठीक है, स्टार्ट राइट बेटा, उसके बाद I1 रेट को ऐड कर दूंगी. आर यू क्लियर बच्चे, टाइप आपको समझ आए बेटा, say yes no beta please. Yes ma'am. Yes beta, please write down everybody fast. So x square plus minus 6 LCM निकाल रही हूँ, माइनस 6 प्लस 1 द होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 प्लस c2. therefore I इक्वल टू क्या करोगे I1 प्लस I2. ये 6 मार्क क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बच्चे, यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में रिवर्स में कुछ है. चलो पहले आप इतना नोट डाउन करो सबसे पहले. सो I इक्वल टू 1/2 रूट 3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 द होल अपॉन रूट 3x एंड देन प्लस I2 ये रहा 1/4 log x स्क्वायर. बच्चे प्लीज़ प्रॉपर तरीका से लिखना बेटा, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c. बस ये रहा आपका फाइनल आंसर. बच्चे थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, टाइम रनिंग है, अभी भी ख़त्म कहाँ हुआ. आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, कितने दिन चल रहा है इंटीग्रेशन आप देख लेना बेटा. सेम प्रोसीजर यू हाउ टू दिस क्वेश्चन. अभी ये फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी और भी है, करो ये जल्दी नोट डाउन करो, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और समझा देती हूँ. सेम करना है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 से, वही x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करना है. उसके बाद सेम प्रोसीजर में जाओगे, थोड़ा बहुत कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा बट पैटर्न यही चलेगा आपको.
सो ये क्वेश्चन होमवर्क दिया बेटा dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4. Yes, ma'am, done. Everybody have done बच्चे? बोलो बेटा. Yes. Time up बेटा. So same pattern I will do it on Monday. Integral dx upon 1 plus x power 4 is over. What I told you, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे से और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. न्यूमरेटर वही आएगा बेटा, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड देन 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4. एक टर्म बनेगा इंटू डी एक्स एंड देन 1/2 इंटू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स पावर अनदर टर्म बनेगा. जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू कैन डू होमवर्क प्रॉपरली. अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ बच्चे. सो इसके बाद वही आई वर्क सिर्फ मैं करके दिखा देती हूँ. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वही एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब सब्सटीट्यूशन तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू t. देन प्रोसीड. क्लियर बेटा? से यस नो बच्चे? यस करो. Yes, ma'am. यस, डू इट होमवर्क.